ये 3-4 भी पता नहीं कैसे फ्री हैं. They literally do. They are preparing for exams. इनके पास anxiety को ही deal करने का time नहीं है. So they're like side में रहो तुम. We'll figure you out later. You know what? But that is the only answer to anxiety. ठीक है. We'll come to that later. कितने लोग हो जो आप daily basis पे anxiety feel करते हो या less motivated feel करते हो या depressed feel करते हो? Let's sort of talk through. हाँ? Daily basis पे उठते वक्त जोर आता है या you have questions about life when you wake up. और क्यों उठना पड़ रहा है? क्या है? Okay, loud and clear. हाँ, क्या कर रहे हैं हम अपने जीवन के साथ? हमारा क्या होगा? हम सही कॉलेज में आए कि नहीं आए? बैचलर्स के बाद क्या करना है? कितनी टेंशन है? कॉलेज तो लगा था फन होगा, लेकिन ये एग्जाम कैसे आ गए इतनी जल्दी? असाइनमेंट्स क्यों है इतनी? I understand. Okay. ठीक है. I think we live in a world. I'll tell you like how I this is this working? Is this on? Check. Check. It's working, right? Perfect. मुझे ये कभी पसंद नहीं आते थे lectern. तुमको पता है इसको podium नहीं बोलते? This is a lectern. This is a podium. जिस पे हम खड़े हैं. मुझे जीवन भर ये बात नहीं पता थी. And one time मैं इतने festivals enjoy like organize करवाती थी and I used to have fun out of them. And one time I was shouting कि podium क्यों नहीं लगाया अभी तक? Podium क्यों नहीं लगाया अभी तक? कहता podium तो लग गया है. So I realized that there is so much in the world of social media that it's a constant realization that there is so much that you don't know. Right? You're always feeling कि हमें कितना कुछ नहीं पता है, right? There's this constant feeling that you get that maybe are we losers? No. You know, but does social media push you to feel like that because you're constantly seeing people who are doing better than you, younger than you are doing better than you, people your age are doing better than you, then people little more older than you are doing so much better than you that the change and the delta feels so high. Do you feel that way? Standard problems क्या है social media से? We have fun at social media, ये सबको पता है. Everybody loves to put a story, loves to share a Snapchat. जीवन Instagram stories और snaps के लिए जी रहे हैं. But isn't this like a very positive thing that we are having fun because we want to post about it? The sad part is maybe we're not having fun and we're just posting about it. The difference between real and real का जितना ज़्यादा delta होता जाएगा ना, वो जो डेल्टा होता है ना, जो चेंज शिफ्ट है, दैट इज द हाउस वेयर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आर बॉर्न. बिकॉज हैव यू कितने लोगों ने जिन्होंने ट्रेन से सफर किया है? सबने. फैंटास्टिक. देखिए जब ट्रेन टनल के अंदर जाती है और पूरा अंधेरा हो जाता है, दैट इज हाउ फील एग्जैक्टली हाउ ट्रांजिशन इज. वो जो ट्रांजिशन, जो डेल्टा, वो जो फेज होता है ना, वो होता ही अंधेरे में है. आगे या तो बहुत रोशनी हो सकती है या बहुत अंधेरा हो सकता है. यू नेवर नो हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू लास्ट. यू नेवर नो हाउ इट्स गोइंग टू फील. यू एंड द मोमेंट ट्रेन एंटर्स दैट ट्रांजिशन, यू कॉन्स्टेंटली वेटिंग कि ये निकलेगी कब यहाँ से, राइट? Yes. एक क्लास जब खत्म होती है, फॉर एग्जाम्पल योर फर्स्ट ईयर एंड देयर इज दिस ब्रेक एंड यू हैव टू एंटर द सेकेंड ईयर. The stupidest, toughest, weirdest phase is the transition. The days in between where you're in no class, no session. Transition is an empty phase. Transitions are supposed to be where changes are happening, you're just not realizing it. So when we were born, okay, generally I'm talking about myself and you're probably Gen Z or Gen Alpha. I don't know, what is, are you guys Gen Z, right? जब आप पैदा हुए तो आपके घर में मोबाइल फोन्स थे, राइट? हमारे नहीं. कितने लोग हैं जिनके घर में मोबाइल फोन्स थे when they were born? Keypad phones, yeah. Right? Okay, and let's understand that what we're trying to understand here, ठीक है? Where जो मुझे लगता है जहाँ पे mental health problems का जन्म होता है कि जब हम लोग पैदा हो रहे थे और जो हमारी education system था, जो हमारा upbringing था, we were made to remember little. तब कोई थोड़ा भी ज़्यादा पढ़ लेता था. For example, for Newton to discover gravity was slightly easy because there was nothing had been discovered yet. So whatever you discover is intelligent, is a discovery. I'm not saying it was super easy, of course, to write math, discover theories, fantastic. But now, when all and all has been discovered,
The data is enormous, but the human brain hasn't evolved as much, right? हम जब हमारे मम्मी पापा पल्ले बड़े हो रहे थे तो आपको 10 फोन नंबर्स याद रखने होते थे, and there was a directory, right? Yes. To write down things, and it was okay to go back and look into dictionaries and directories and whatsoever. So brain capacity of saving a data was maybe this much, and only this much was expected out of you. Rest all in all was emotional capacity, right? कि किसकी इमोशनल कैपेसिटी कितनी है, बाकी सबका ही है. किसी का फोन नंबर है तो डायरी में लिखा हुआ है, किसी का ये. So excess, life was slow, learning was slow, everything was slow, and hence there was more peace in the hearts than today. Okay, you grow up and you realize there's a telephone device जिसके अंदर आप नंबर सेव कर सकते हो, so you don't have to pen it down anymore. They're saved and it's with you everywhere. You grow more, you realize there's a thing called internet, that you type things and things show up. Right or wrong, but things show up. There's a place called youtube.com. If you type things, there are some fun videos pop up. You can watch, you can listen to songs. पहले जब बच्चे बहुत दूर पढ़ने जाते थे तो माँ बाप इसलिए नहीं भेज पाते थे क्योंकि कोई बात करने का साधन नहीं था. Right now there's WhatsApp, it's a free call. It's literally, internet is free for everyone. Hence the boon and the bane. सबने खूब डिबेट करी होंगी अपने स्कूल्स में, इंटरनेट बून और बेन, सोशल मीडिया बून और बेन, प्रो कॉन्स, एवरीथिंग इज लिस्टेड. व्हाट इज द प्रॉब्लम? हमें सारे गुड्स पता है, वी आर यूजिंग द गुड्स एवरी डे, राइट? बट द बैड्स आर द स्कैम्स, द मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड एवरीथिंग. कोई बहुत जरूरी बात चल रही है पीछे. अटेंडेंस मिल रही है क्या? हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर जा रहे हैं. तुमको पता है इसे नहीं देने चाहिए अपने नंबर. Just kidding. Okay. Can you all please settle down? Because this is a closed auditorium. The little you talk, the more I hear. All settled? Everybody settled in the places? Yes. Okay. Now, I was told that the Q&A round is supposed to happen in the last 15 minutes. But I'm not here for a show or just to recite my poetries. I've been where you are right now. मैं इन्हीं कुर्सियों पे बैठी हूँ. मैंने इन्हीं कुर्सियों पे बहुत सहा है और बहुत सीखा है. ठीक है, सहा इसलिए क्योंकि मैं शायद किसी ऐसी जगह पे थी जहाँ मुझे नहीं होना चाहिए था. बिकॉज आई डिडंट फिट इन. आई नेवर फिट इन. मैं जहाँ जाती हूँ मैं फिट इन ही नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं हूँ अतरंगी, एंड आई एम वियर्ड एंड आई एम डिफरेंट. उर्दू में कहूँ तो मुख्तलिफ हूँ मैं. ठीक है, अगर इफ दैट गिव्स यू मोर फील्स फॉर एस्थेटिक्स, राइट? Okay, now the whole deal is, can you sort of start raising your hands and tell me the things and tell me problems that doesn't make you feel motivated. And I want you to, people at the back, I want you to not talk because I can hear it and not understand it. So either please join me at the podium. I'll give you the mic, trust me. Okay, can you one by one raise hands and we'll sort of explore through that. What is it that gives you trouble? Okay? One by one, collectively, क्या चीज़ है जो आपको डीमोटिवेट करती है, एंजाइटी देती है, या आपको लगता है कि कितने लोग हैं जो डिप्रेस्ड फील करते हैं? ओके, हाय, प्लीज टेल मी व्हाट अर्क्स यू. सबसे पहले नेबर्स बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, एंजाइटी फील कराते हैं बहुत ज़्यादा. नेबर्स ऐसे घर के पड़ोसी लोग की बटबिटिया के नंबर कितने आए हैं? आप अपने घर में रहती हो या हॉस्टल में रहती हो? अपने पेरेंट्स के साथ. अच्छा, दिल्ली में? यस. ठीक है. आर यू अ टॉपर? एवरेज. Like since forever or you used to be a topper? 12th तक तो मैं पोजीशन आ रही थी बढ़िया. जैसे कॉलेज ज्वाइन करा, पता नहीं क्या हुआ, दोस्त ऐसे मिले, कुछ मिला, बट एवरेज से डल. बट सारा दोस्तों पे डाल दिया इसने. और जब दोस्त घटिया मिले हैं मुझे तो मेरे नंबर हो गए कम. तुम पता कैसी बात कर रही हो? वो एक मम्मी होती है ना जिसको लगता है मेरा राजा बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता, और जैसे ही वो बिगड़ने लगता है कहते हैं इसके दोस्त पर ही बिगाड़ा है, हमारा बेटा तो बहुत सियाना था. बिगड़ा तो वही है ना खुद जाके. जस्ट किडिंग. हाँ जी, बोलो. क्या नाम है पहले आपका? रितिका सैनी. अच्छा, रितिका सैनी. So why do you think neighbors trouble you and gives you anxiety? They are very nosy. Like अपनी टांग अड़ानी, कुछ भी मामला हो हमारी फैमिली से रिलेटेड हो, अपनी टांग अड़ानी है उनको. ऐसा होता है ना, अटेंशन सीकर टाइप वैसे. हाँ. अच्छा, कितने लोगों को ये स्टैंडर्ड कितने ये मान के चले कि कॉमन प्रॉब्लम पिछले जन्मों से पलती आ रही है, रिलेटिव्स नोजी हैं बहुत और या नेबर्स नोजी हैं. अच्छा, जब भी ऐसा कुछ हो तो जोर से हाथ उठाएंगे सब लोग. ठीक है, think of it as an exercise in the winters, very important.
ठीक है, ओके। कितने लोगों के पड़ोसी रिश्तेदार तंग करते हैं? एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस? बिटिया के नंबर कितने आ रहे हैं? बिटिया क्या करती है? ठीक है, आगे का क्या प्लान है? आगे का क्या प्लान है? क्या सवाल है जरा मुझे बताना। और आगे का क्या प्लान है? हाँ जी, क्या? जोर से बोलो बेटा। इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि बेटा बोल रही हूँ, थोड़े दिन पहले वहीं बैठी हुई थी। हाँ बताओ। हाँ जी, मैं तुम्हारा रिजल्ट चेक करूंगी कितने नंबर आएंगे। पड़ोसी, यस। रिलेटिव्स एंड पड़ोसी, ठीक है, ओके। और कंपैरिजन। कौन है ये? बुआ जी हैं, मासी जी हैं, चाची जी हैं? शी इज माय कजन। She's your cousin? Oh my god. Okay. Next answer. Next question. Sorry. क्या है और क्या है? कंपैरिजन। Comparison with their own children, right? बेटी को बाइक क्यों दिला दी? हाँ जी, बेटे को बाइक क्यों दिला दी? घर लेट क्यों आते हो? ठीक है। एंड ये सारे सवाल आपके अपने माँ बाप नहीं पूछ रहे हैं, ये और लोग हैं, राइट? नहीं, हम माँ बाप के ऊपर बाद में आएंगे। अभी सिर्फ हम पड़ोसियों की बात कर रहे हैं और रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं। What? हाँ जी। कोर्स में स्कोप क्या है? ठीक है, और ये कलर सूट नहीं करता है, मत पहना करो। ये कलर सूट नहीं करता है, मत पहना करो। ओके, व्हाट एल्स? प्लेसमेंट का क्या सोचा है? यू इन थर्ड ईयर? ओके, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? बैड कंपनी ज्वाइन इन तीन करनी। बच्चों घरों में कोई मुसीबत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, कूल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज कि जब कितना भी जमाना बदलता रहे, जो मसले हैं ना, जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑन अ कॉमन लेवल बहुत सिमिलर रहती हैं। जब मैं पढ़ रही थी तब भी ये सवाल थे, जब मेरी मम्मी पढ़ रही थी तब भी ये सवाल थे। However, so this is very important for all of you, and this is how I have decoded it. I was in 9th class when I wore a black dress with a pajami because I was not allowed to wear dresses as such. ठीक है, and I went to pick up my friend. उसमें उसके घर गई क्योंकि हम कॉलेज साथ जाते थे, तो रास्ता ऐसा था, हम उसके घर तक जाते थे और फिर हम ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन साथ जाते थे। आई वाज इन स्कूल प्रॉब्ली 9th और 10th क्लास, मुझे याद नहीं, 10th आई गेस। और वो बहुत गोरी थी मुझसे, एंड आई वाज वे मोर डस्कियर व्हेन आई वाज इन स्कूल। सो योर स्किन कलर कीप्स चेंजिंग कंपेयर टू कहाँ का पानी आप पी रहे हैं और आप कहाँ पे हैं, कितना सूरज आपके शरीर को लग रहा है। बेसिक रूल है, अगर जितने बायोलॉजी के बच्चे हैं मुझे बता देना, जितना सूरज उतना मेलेनिन हमारी बॉडी में प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्रीट करती है। मैं सही बोल रही हूँ? ठीक है, तो जैसी जगहों पे आप रहते हैं, जैसे माहौल में और जैसा आपकी बॉडी का सिस्टम होता है, आपका स्किन कलर बायोलॉजिकली उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। जेनेटिक्स प्ले अ ह्यूज और अ स्मॉल रोल, डिफरेंट, इट्स डिफरेंट फॉर एवरीबडी, इट्स वेरी टेलर मेड। सो आई वेंट टू देयर हाउस एंड आई वाज वेयरिंग माय मैंने नई ये आउटफिट बनवाई है, मैं तो बड़ी अच्छी लग रही हूँ खुद को, है ना। और मुझे पता है कि सर्दियों का टाइम था, मैंने हाई नेक के ऊपर ड्रेस पहनी थी, ठीक है। एंड आवर फादर सेज टू मी कि हाय हाय ये काले कपड़े क्यों पहने हैं, ये तो हमारी गोरी बेटी पे अच्छे लगेंगे, तू तो दूसरा कलर पहन कोई। तो कॉन्ट्रास्ट के कपड़े बेसिकली वो मुझे पहनाना चाह रहे थे, या पता नहीं वो क्या करना चाह रहे थे। एंड आई वाज सो हर्ट कि 3 दिन तो मैं इसमें ही घूमती रही कि यू नो that I'm not pretty enough or maybe I'm not beautiful enough or whatsoever. 3 दिन बाद में एक दिन रात को बहुत तेज चारपाई होती है ना, हमारे घर के पास चारपाइयाँ लग जाती थी, कूलर चलता था और लाइक यू नो ऐसे सर्दियों में चारपाइयाँ लग जाती थी अंदर और गर्मियों में बाहर। तो अंदर चारपाइयाँ लग गई थी सोने के लिए, और मेरी मम्मी ने देखा कि रजाई के नीचे मेरी लड़की जोर जोर से रो रही है, ठीक है। एंड आई एम क्राइंग एंड आई वाज क्राइंग एंड आई टोल्ड माय मदर दैट यू नो आई हैव बीन टोल्ड दिस। मेरी मम्मी ऑलमोस्ट झगड़ा करने पहुंचने वाली थी उनके घर तक। I had to control her. Every time somebody asked my mother कि ये लेट क्यों आती है या ये जल्दी क्यों आती है, और every time somebody asked my father कि बिटिया क्या कर रही है या ये YouTube पे videos क्यों डालती है, I think what helped me, and I have to give this credit to my parents and a little bit to myself, is that those questions were never directed to me. ठीक है, ये दुनिया की बात ही नहीं है। वो क्या कहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। इमेजिन दैट अगर मैं इस कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दूं तो बाहर कोई क्या कह रहा है आपको फर्क पड़ेगा? राइट, until somebody completely knocks the door, you open it and tells to you. तो मोस्टली ये सारी बातें आपके पेरेंट्स को कही जा रही हैं। सो नाउ इट इज रियली ऑन यू कि आपका और आपके माता पिता का रिलेशनशिप कितना हेल्दी है, नंबर 1। नंबर 2, हैविंग अ बेटर communication with your parents is going to make your life so easy. आपको ऐसा जनरली लगता रहता है कि हमारे माँ बाप और हम दो अलग इंसान हैं, बट आप लोग इतने सिमिलर हैं बिकॉज नंबर 1 यू शेयर द सेम जीन पूल, एंड नंबर 2 यू हैव द सेम फैमिली डायनामिक। तो जो आप देख रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुसीबतें उन्होंने नहीं झेली है, उन्होंने झेली है। सो द बेटर यू आर
at your convincing skill, it helps. Definitely helps. Route 1 is to sort of make sure that you have a better relationship with your parents. How can you do that? You have to talk to them more, you have to be more honest. You have to make sure that they understand where you're coming from. And they will understand. You might feel like that they will not, but trust me, they will understand. I have convinced my parents, to so many things that you won't even believe कि ये ऐसा हो भी सकता है. I come from a very small town, बहुत छोटे शहर से आती हूँ. मेरे शहर की लड़कियाँ बाहर पढ़ने नहीं जाती हैं. मेरी सारी cousins की शादी probably 20-21 years old में हो गई थी. भाइयों की भी, बहनों की भी. वो सब shopkeepers as of now because the family business is as such. I'm the first girl in my family to take an international trip. I completed 10 countries this year and I'm not married yet. And I come from a family where you're told कि जो करना अपने पति के साथ करना. So without the pati, 10 countries, whole country, जो हमारी अपनी है, n number of shows, I travel with men, I travel with women, I am on my own. So this is convincing power. Okay? So, trust me, they will understand. मैं वहीं से आई हूँ जहाँ तुम बैठे हो और मैं कुछ खासा फर्क नहीं है. अभी भी मेरे मम्मी पापा बहुत सारी बातें नहीं समझते. So the guy that I'm gonna get married to probably this year or I don't know when. We've been dating for 8 years. ठीक है, हम लोग कॉलेज में एक दूसरे को मिले थे. Of course, we were too young to tell this to our families. But when we were old enough to tell it, मेरे पापा को word boyfriend बोलना समझ नहीं आ रहा था. It was very tough for him to tell अपनी बहनों को, भाइयों को कि मेरी बेटी का boyfriend है. So to remedy that, उन्होंने मुझे convince किया and I had to get engaged. Okay. So कभी वो भी जीतेंगे इस बैटल में, कभी तुम भी जीतोगे. But what I'm trying to genuinely tell you is कि आपके स्कूल के दोस्त अभी कुछ समय के बाद आपके दोस्त नहीं रहेंगे. You can ask your third year seniors that कितने वो अपने स्कूल के दोस्तों से बात करते हैं. ये कॉलेज के दोस्त आप कभी कभी मिला करोगे. नौकरियां बदलोगे, दोस्त बदलेंगे. The constant and long term relationship that you're going to have with is your own family. जिन लोगों के साथ आप एक घर में रहते हो, ये जितने साल आप जियोगे, आपकी रोज फोन पे बात होगी, रोज आपको देखोगे, फंक्शंस में मिलोगे. तो अगर आपके पेरेंट्स को आप समझा दो कि यार ये बाउंड्रीज बंद कर दी जाए, तो we'll be better human beings and it will help us. Number 1, can we do that? Yeah, can we at least try? Yes. Okay, next problems. Let's hear it. और क्या मसला है हमें? Let's try to go more inside and less outside. Do you wake up and feel not pretty? Yes. Okay. Do you wake up and feel कि society के beauty standards इतने high हैं कि हम fit in नहीं करते हैं? Do you scroll Instagram, Facebook, Snapchat and all the platforms and feel कि कितने सुंदर लोग हैं और शायद हम नहीं हैं? Do you feel that way? Yes. How many of you feel that way? I feel that way. I am under huge beauty convention pressure or whatsoever that I had to put makeup before coming here. I didn't want to, trust me. ठीक है? I think generally women express it more, men also feel it, they don't express it. Because this is also less manly to express. Right? How many of you feel that we are not, अगर हम जितने angry होंगे या जितने strong होंगे या जितना हम gym जाएंगे, will be more capable as men? Boys in the house. कितने लोग हैं जो gym जाते हैं? Okay, 1, 2, 3, 4. कितने लोग हैं जो कुछ भी games खेलते हैं? They do any form of physical activity? कितने लोग हैं जो gym बेहतर दिखने के लिए जाते हैं, not for fitness? हाथ नहीं उठाओगे पर तुम अपने मन में जानते हो. Right? This is a piece, it's called तुम खूबसूरत हो. ठीक है? And every time I say खूबसूरत हो, you have to say it with me. The only thing that I feel with beauty is ना कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी belief पे होती है और कुछ नहीं होता है. So the moment you wake up and you start telling yourself in the mirror कि हम beautiful हैं, हम pretty enough हैं, it will be better. The life will be better because you can't change with what you're born with and you should not. All of us are unique blends of the universe and we're supposed to be pretty. So don't fall for the beauty conventions. I'll give you a few examples why not. Do you know ये जो Lysol जिससे पोछा लगता है घरों में जो डलता है, it was made for a woman's vagina. Back in the US, back in 1850s or maybe 1950s, I have to correct the data, but it was made for female vaginas so that when their husbands come home, their private parts smell good. You won't believe
कि किस किस तरह की मार्केटिंग स्कीम सेट की जाती हैं ताकि आपका जेब का पैसा दूसरों के घरों में पहुंच सके। हैंडबैग्स, विमेन डिड नॉट नीड देम, कुछ नहीं था ऐसा जो उनको चाहिए था। हैंडबैग्स बनाए इसलिए गए थे क्योंकि मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं था बेचने के लिए, सो इट वाज मेड एज अ ब्यूटी सेंटर। ओके, आई शो यू। ओके, दिस इज माय हैंडबैग, ठीक है। इसमें क्या ही पूरा आएगा, क्या ही पूरा आएगा इसमें, राइट? क्या इसमें कुछ नहीं है, एक लिप बाम है, 2 टिश्यू पेपर है। डिड आई नीड दिस टुडे? बट बिना इसके मुझे लग रहा है मेरा लुक कंप्लीट नहीं है। ओहोटीडी, ठीक है, इट्स ओहोटीडी, ट्रस्ट मी। सो एवरी टाइम यू वेक अप वी हैव टू डू दिस, एंड ठीक है, इट्स कॉल्ड तुम। सब लोग कहेंगे तुम, और जोर से तुम। डीयू के बच्चे पता है क्यों फेमस है? क्योंकि आवाज में दम होता है। तुम ये बात खुद से 100 दफा कहो। चलते वक्त, रुकते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, खुद को आईने में देखते वक्त, मुस्कुराते वक्त, चिल्लाते वक्त, दूसरों की आंखों में अपनी झलक देखते वक्त, बिना ये सोचे कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, खुद से बेखौफ कहो कि तुम खूबसूरत हो। जली आंखों में काजल डालने से पहले, सूखे चेहरे पर सफेद रंग लगाने से पहले, कानों को झुमके के बोझ तले दबाने से पहले, कमर को 2 इंच छोटे कपड़े में कसने से पहले, इसी कपड़े को अपनी छाती में धंसने से पहले, इन होठों को लाल गुलाबी सुर्खी में बंद करने से पहले, इन्हें कहने दो कि तुम खूबसूरत हो। और जब ये बात झूठ लगे, तब भी कहो कि कोई दिल लगी, कोई जिम्मेदारी, अवसाद या कोई बीमारी रहा होगा कारण इस रूखे बदन का, और इससे खूबसूरत क्या ही होगा कि रूप ने खुद से ऊपर ध्यान रखा रूह का। तो ये सच एक दफा खुद से फिर कहो कि तुम खूबसूरत हो। और जब भी कोई इस बात को झुटलाना चाहे, शरीर के आड़े टेढ़े आकार तुम्हें समझाना चाहे, तब भी कहो कि कोई दिल लगी, कोई जिम्मेदारी, अवसाद या कोई बीमारी रहा होगा कारण इस रूखे बदन का, और इससे खूबसूरत क्या ही होगा कि रूप ने खुद से ऊपर ध्यान रखा रूह का। तो ये सच एक दफा खुद से फिर कहो कि तुम खूबसूरत हो। तब तक कहो जब तक ये आवाज तुम्हारी जुबान से निकल तुम्हारे कानों तक पहुंचने से पहले तुम्हारे गालों को ये बताकर उठा ना दे, तुम्हारी आंखों के गड्ढों में बैठ ना जाए, तुम्हारे होठों की करवट बदल ना दे, तुम्हारे माथे की सिलवटें हटा ना जाए, तुम्हारे बदन के कण कण को बता ना दे, तुम्हारी रूह में जब तक ये बात बस न जाए तब तक कहो कि तुम खूबसूरत हो। और जब भी कोई इस बात को झुटलाना चाहे, शरीर के आड़े टेढ़े आकार तुम्हें समझाना चाहे, मोटी हो गई हो, सुबह उठकर टहलने नहीं जाती, रंग तो देखो, दही बेसन क्यों नहीं लगाती, और लड़कों को भी नहीं छोड़ते, ये पतली कमर, 20 की छाती, 5 फुट का 6 का डोला, तू सच बता तुझे मर्द कौन बोला? ऐसी हजारों लाखों बातों से हमें हर रोज नीचा दिखाया जाता, मैं जानती हूँ ऐसा शारीरिक मजाक हमारा हर रोज उड़ाया जाता। तो अगली दफा जब तुम्हारी नजरों में तुम्हें कोई गिरा न चाहे, खुद को बेवजह तुमसे ऊंचा कोई बताना चाहे, तो उसके करीब जाना, हाथ थामना या पीठ थपथपाना और उनसे कहना कि मेरी जान हम नहीं जानते कि तुमसे ये किसी ने कहा है या नहीं, मगर तुम खूबसूरत हो। ये बात खुद से 100 दफा कहो, हर वक्त कहो, कहते रहो कि तुम खूबसूरत हो। थैंक यू। How many of you have been either told or feel कि अगर ये पिंपल निकल आया है तो इसका दाग न रह जाए, ये चेहरे पे हमारे बहुत स्किन ब्रेकआउट हो रही है, ये प्रोटीन पाउडर पीने से स्किन खराब हो जाती है ना, ये सब होता है ना, ऑल ऑफ दिस, राइट? पता है क्यों? क्योंकि we've been sort of told and taught, क्या है, नजरिया है ना, आप बड़े हो तो आपको चीजें सिखाई जाती हैं, आपका एक वैसा पर्सपेक्टिव, वैसा नजरिया बन जाता है। दिस इज कॉल्ड लर्निंग अबाउट यूनिवर्स एंड लाइफ।
लर्निंग क्यों? क्योंकि आपने किसी और से सीखी है। दूसरी चीज जो मुझे लगता है हमें करनी चाहिए इज कॉल्ड अनलर्निंग अबाउट लाइफ दैट द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड हैज टॉट यू। इमेजिन इफ वी फ्लिप एवरीथिंग, इफ वी वर टोल्ड दैट यू नो, जैसे कैसे बोला जाता है कि गोरे हो जाओ गोरे हो जाओ। इमेजिन इफ यू वर टोल्ड कि काले हो जाओ, जाओ धूप में खेलो, जाओ, आना मत 3 घंटे से पहले घर पे, कैसे छांव में कैसे खेल रहे हो तुम? Imagine if we reverse it, because it's perspective now. Imagine if we were told कि पतले होना बुरी बात होती है. Imagine if we were told कि fit होना बुरी बात होती है. जाओ तला हुआ खाना खा के आओ थोड़ा सा और. Go eat more मैदा. Imagine if we were told कि फूलों की बजाय कांटे देना एक ज़्यादा gesture of love होता है. तो आप कांटे तोड़ के लाते? Everything this is learned ना, तुम ये सीख के तो नहीं आए ना पहले से. Imagine if we were told that white is the color of love and not red. Imagine if we were told कि काला पहनना तो शुभ होता है या सफेद पहनना तो शुभ होता है. Imagine if we were taught कि शायद हाथों से चलना होता है, पैर ऊपर होने चाहिए हमें. ऐसे सिखाया जाता है हमें कि बेटा प्रैक्टिस. I'm just saying some things that are biologically that you can see in your body कि पैर flat हैं, hathon se nahi chala ja sakta. There are proofs, there's evolution and there's logic to it. Things that are logicless, okay, things that have been purely created by society so that you can fall for it, created by marketing. Do you know Santa Claus was never red? How many of you know this? Santa Claus was never red. Christmas was never red. Because there's not much red in the universe. Santa used to wear white, green, and more blue. Santa generally was a very angry person, so he better had a list of bad children more than good. He was actually there to tell you कि ये तुम बुरे बच्चे हो, तुम्हारी मैं पिटाई करने आऊँगा. He was really like an angry person, not very Saint Nicholas जिसके ऊपर ये पूरा character build दिया गया. And one day Coca-Cola, because they wanted to brand themselves, created a red Santa to promote and made him more chubby, more bubbly. और उसके बाद से आपको पता है क्रिसमस पे क्या होता है लाल रंग का, right? So a lot of you and a lot of the world that we think is okay और ये ऐसा होता है is nothing but marketing, जो किसी ने कभी अपने benefit के लिए चलाई थी और अब हम mindlessly उसको follow कर रहे हैं. Similarly, we were told by skin doctors and by whatever doctors that इसको आप प्रिटी हो सकते हो, ये दाग हटा लोगे ना तो सुंदर लगोगे, ये वाली क्रीम लगाओगे तो अच्छा होगा. वो जो ऐड आती थी ना किसकी, फेयर एंड लवली की, 7 दिन में जेनेटिक्स ही चेंज कर देंगे तुम्हारे, बालों पे लगाओगे तो ब्लॉन्ड हो जाओगे, अमेरिका जाओगे तो कोई पहचानेगा ही नहीं कि कहाँ के हो. Just saying, because marketing does play a huge. Because of all of this marketing, we realize that we've never celebrated our flaws. कितने लोग हैं जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं? 12th तक पढ़ी है कितने लोगों ने फिजिक्स? ऑलमोस्ट सब ने. There used to be this, एक लाइन होती थी, मुझे याद नहीं किस चैप्टर में, when we were learning a little bit about time, that if in the past coordinates होते हैं ना, 3D coordinates में सारा वर्ल्ड, तो अगर एक भी कोऑर्डिनेट आपका हिल के इधर उधर हो जाए तो आपका पूरा फ्यूचर चेंज हो जाएगा. So whatever your present is, ये जो भी है, ये बहुत बुरा और बहुत अच्छा, बहुत डिफरेंट, हो सकता है तुम जिंदा ही नहीं होते अगर वो एक कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता. आई एम जस्ट सेइंग, हो सकता है तुम बहुत बड़े स्टार होते अगर वो एक कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता. द possibilities are infinite. There are multiple P and C's of what you could be, but the flaw that the society has asked you to call a flaw, that acne mark, your skin color, your body shape, that is what nothing but a coordinate in your past, an incident. बचपन में चोट लगी थी, घुटने का ऊपर का दाग अभी तक नहीं है, स्कूटी चलाते हुए गिर गई थी, मेरे दोनों घुटने आज तक छिले हुए, राइट? ओके, तो हमने ना कभी अपने फ्लॉज को सेलिब्रेट ही नहीं किया, क्योंकि मार्केटिंग कैसी है, कपड़ों पे दाग लग जाए, वैनिश से दो, एक ढक्कन वैनिश, सर्फ एक्सेल, राइट, टेड, चमक गई, क्या टाइड, क्यों चौंक गए, है ना? हाँ चौंक गए, तुमने हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया, मेंटल हेल्थ चढ़ा दिया तुमने हमारी, कपड़े चिट्टे करके, राइट? So this piece is called Daag. For the next 3 minutes, I just want you to go back and think of every daag that the society calls you have.
ठीक है, एवरीथिंग, इफ इट कॉल्स यू डस्कियर, इफ इट कॉल्स यू different, and if it wants you to fit into that perfect beauty standard, I want to think of every of that standard. जैसे लड़कों की जब तक बियर्ड नहीं आती उनके पीछे पड़ रहते हैं लोग, दाढ़ी नहीं है तो किसकी, तो ये तो लड़की दोस्त है हमारा, व्हाट इज दिस, तू ना भाई शेव करनी शुरू कर दे अभी से, अरे जीने दो बेचारे को, right? So what we're going to do, we're going to celebrate everything that the society calls a flaw, okay? मैं कहूंगी कहा है कि, और आप कहेंगे इरशाद, ठीक है, और आपको अच्छा लगेगा तो वाह कहेंगे और ताली बजाएंगे, ठीक है? कहा है कि चेहरे पर मेरे एक दाग है, मेरी नाक जरा है इधर उधर, आंखों से जरा मैं भटकती हूँ, दिखती हूँ थोड़ी अलग अलग। तुमको पता है हम सबकी आईज में थोड़ा सा एक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हिंदी में टीरा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैं नाम भूल गई, कुछ कुछ बोलते हैं उसको कि हल्का, वी डोंट हैव सेंटर पॉइंटेड आईज, ऑल ऑफ अस, we have a little bit, your right face and your left face is a bit different. रेटिना, हाँ? रेटिना, रेटिना नहीं, बीमारी नहीं है, डॉक्टर के पास जाने वाली हालत है। It's called, I don't know what it's called, मेरी अंग्रेजी भी कोई खास अच्छी नहीं है। Whatever it's called, your right face and your left face is a different, और ये बायोलॉजिकली हम सबका थोड़ा अलग होता है। तो सारे स्किन डॉक्टर्स ने और सारे प्लास्टिक सर्जरी वालों ने इसको पकड़ लिया कि बराबर कर देते हो, तो हर कोई उनका क्लाइंट हो गया है, राइट? तो चेहरे पर मेरे एक दाग है, मेरी नाक जरा है इधर उधर, आंखों से जरा मैं भटकती हूँ, दिखती हूँ थोड़ी अलग अलग, लोग मुझे देखकर नजरें चुराते हैं, एक बार को अटपटाते हैं, फिर दूसरे ही पल बड़े दया भाव से मुस्कुराते हैं। वो पूछते हैं मुझसे, चेहरे पर जो ये दाग है क्या बचपन की कोई याद है? याद जिसका काम है बीते कल की बातों से मेरे आज को चुराना, और तुम जैसे लोगों को मुझे अपनाने से डराना। तो मैं भी कह देती हूँ उनसे कि ये डर जो तुम्हारे सर बदन पर लिपटा है मेरे बस चेहरे तक सीमित है। बचपन जिंदा है मेरा, बचपन जिंदा है मेरा, निडर हूँ मैं आज भी, मेरे सर पे है बेफिक्री का वो ताज भी, मुझे खौफ नहीं, मुझे खौफ नहीं। सूरज जो मेरा रंग चुरा ले, बारिश जो मुझे भिगा ले, मैं तो खुद बारिश की उन बूंदों से कुछ रंग चुरा लेती हूँ, प्रिज्म इफेक्ट। धूप निकलते ही उन्हें अपने बदन पर सुखा लेती हूँ, वो बूंदें जिनमें बसती मेरे अंदर की सारी आग है, लोग समझते इसे बस मेरे चेहरे का एक दाग है। वो लोग जो इसे मेरी बदकिस्मती बदसूरती बताते हैं, खुद रखने से पहले कदम धर के बाहर घंटों आईने के सामने बिताते हैं। वो लोग जो मांगकर काले काजल से इबादत, वो लोग जो मांगकर काले काजल से इजाजत करते हैं सफेद रंग की इबादत। वो काला काजल जो किसी की आंखों को सजाता है, वो काला कपड़ा जो किसी के बदन को बड़ी खूबसूरती से छुपाता है, फिर न जाने क्यों वो गोरा बदन काले चेहरों से दूरी बनाता है। क्या खबर उसे कि उसकी आंखों में बसता वो गोरेपन का गुरूर महज एक काला काजल उठाता है। मगर दस्तूर कुछ ऐसा ही है जमाने का कि जला सके सूरज हर सुबह, चांद हर रोज छिप जाता है। मगर ये चेहरा जलता है उस चांद से, मगर ये चेहरा जलता है उस चांद से, लिखे जिस पर किस्से हजार, लिखी जिस पर नगमे हजार, और इस चेहरे पर इकरार नहीं। क्यों? उस चांद पे क्या कोई दाग नहीं? मगर दस्तूर कुछ ऐसा ही है जमाने का कि ये दाग जो आंगन में हो तो चादर बिछाना जरूरी, ये दाग जो कपड़े पे हो तो मिटाना जरूरी, और ये दाग जो चेहरे पे हो तो बदसूरत हो चेहरा छुपाना जरूरी। इस जमाने से तो वो साबुन ही बेहतर है जो काम में अपने कच्चे हैं, मगर फिर भी कहते हैं कि दाग अच्छे हैं। मेरे चेहरे पर जो ये दाग है, मेरे चेहरे पर जो ये दाग है एक निशानी है सीमा कोई तोड़ पाने की, किसी मुश्किल से लड़ जाने की। एक आवाज है तमाम इस खूबसूरत जमाने के लिए जो रूह को मारने चले हैं और रूप संवारने चले हैं कि ये रूह एक दिन चली जाएगी, फिर रूप की ना कोई औकात रह पाएगी। एक सवाल है कि ये सीरत जिस दिन संवर जाएगी, क्या सूरत से वो टकराएगी? मेरे चेहरे पर जो ये दाग है जिंदा इसके लाखों ख्वाब है। थैंक यू।
So when you go back to your hostels, your rooms, your homes today, are you going to feel a little more beautiful about yourself? Yeah? Can we do that? Yes. Fantastic. अगला मसला क्या है हमारा? हाँ? Overthinking. अरे बाप रे. What else? हाँ? Overthinking. और क्या है? Let's reach out to mind-related problems which society doesn't create for us, but we do. Focus. Focus, of course. What else? Huh? Fear of failure. Okay. What else? Self-hate. Attachment. Okay. Two things that I absolutely love. What has come from the audience is fear of failure. कितने लोगों को fear of failure है? हम सबको है. We're all so afraid to fail. Oh my God, I am shocked. Okay, when you will enter the real world, ना जब तुम नौकरियाँ करोगे, काम धंधे करोगे, जो भी करोगे, business करोगे, whatever you want to do, maybe if you want to become influencers, जो भी आप काम चुनोगे ना पैसे कमाने के लिए, you will realize that failure is a everyday thing. You will fail every day. You will rise every day. It's as basic as eating food, waking up, and failing to shower in winters. Also failing to shower in summers because we don't feel like. Failure is it's nothing. It's journey. ये जो हमको बताया जाता है ना नंबर कम आ गए फेल क्यों हो गए it's the most stupid thing ever. Okay, I did write something about it. I don't remember it right now, but the whole concept is वो कहते हैं ना कि अगर एक मछली को आप उसकी इस कैपेबिलिटी से जज करोगे कि वो कितना ऊंचा पेड़ कूद सकती है तो आपका ही बंदर बनेगा. Right? So if you fail, remember there are two ways. Either you didn't try and now is the time to try. The second thing is maybe you're running in the wrong race. As simple as that. Maybe you're not made for this and take that call. Don't be afraid of your. There's this quote. मैं जब 11th या 12th में थी कौन सी इंग्लिश की किताब थी आप लोगों की क्या नाम था उसका? Movement. हाँ? Vistas? Movement. Flamingo. Either Vistas के अंदर एक चैप्टर था जहाँ पे कहीं पे ये 4 वर्ड्स लिखे हुए थे. अगर किसी को याद हो, it's called Mad Heart, Be Brave. I went so mad over these 4 words. It's my Instagram bio. मैं जितने जहाँ जा रही हूँ हर कमरे में ये 4 वर्ड्स मैंने कागज पे लिख के लगाए हैं. Mad Heart, Be Brave. See, always think of your parents as humans. ये जो हमारी जो कल्चर है it's beautiful that we're supposed to respect everybody. Understood. ये जो हमने माँ बाप को है ना एक भगवान के पेडेस्टल पे बिठा दिया है और हम जो भी बड़े लोग कहते हैं हम उसी में चलते जाते हैं. बट ट्रॉमा जो होता है ना it's a chain. ये generationally आपके अंदर आता है. तो ये जो failure है ना ये वही है. It's that trauma. It probably started when we were getting ruled by Angrez. Britishers had come and they constantly told us that you Indians are a failure, right? तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम तो देहाती हो, तुम तो गांव वाले हो, तुम तो हाथ से खा रहे हो, हमारा स्टैंडर्ड देखो कितना हाई है, हम क्वींस हैं, हम की हैं. It changed. वो जो 200 साल थे ना, it changed how we think. So इसीलिए जब आप देखोगे ना, do you remember where did English people enter from? किसी को मालूम है? East of India, right? And east of India they sort of occupied most of the north. इसलिए जैसे आप अगर कभी भारत भ्रमण करोगे ना तो जितनी चीजें डिस्ट्रॉय हुई हैं और जितनी चीजें बनी हैं वो सारी बहुत नॉर्थिश हैं. दिल्ली में सीपी ठीक है और दिल्ली में जो डिस्ट्रॉय हुआ है वो भी सब. तो इसीलिए जो नॉर्थ के लोग हैं ना दे आर वेरी फियर्स, ऑलवेज रेडी टू कैच अ फाइट, राइट? कभी भी देख लो हरियाणा पंजाब ये यूपी की पूरी बेल्ट पकड़ लो तुम और तुम लड़के दिखा दो. कितने लोग हैं जो हरियाणा पंजाब और यूपी से हैं यहाँ पे? इनसे नहीं लड़ना है. इनके ग्रैंडफादर्स फॉरफादर्स या तो फ्रीडम फाइटर्स थे या उनके दोस्त थे या इन सबने नारे लगाए हैं. सो दैट इज इन आवर ब्लड. सो कॉन्स्टेंटली द फियर ऑफ फेलियर्स टू अस मीन्स कि कोई हमें अभी आके रूल कर रही है. वेरी जेनेटिकली स्पीकिंग हमारे लिए फियर जीतना क्यों जरूरी है? क्योंकि वी वांट टू बी ऑन द टॉप. कि कोई हमें बताए ना क्या करना है. वी वांट टू बी आवर ओन. दिस इज लाइक इस एवरी टाइम यू गो टू महाराष्ट्र ना वो सब लोग दे आर वेरी लाइक दे आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर लैंड बिकॉज महाराष्ट्रियन पीपल वर सॉफ्टर कामर. देयर फिजिकल बॉडीज वर डिफरेंट क्योंकि वहाँ फार्मिंग नहीं था, लैंड नहीं था, तो उनका काम अलग था. ज़्यादा लोग मछुआरे थे तो मछुआरे और फार्मर में से फार्मर कैन रियली
fight because biceps are built. So basically it's all biology. And you know why South Indians feel that we are not Indian enough? Because most culture जो हमने Western का adapt किया, because West came to us, right? तो हमने ज़्यादा adapt किया, इसीलिए maybe the North is more modern, more westernized than the South, and hence the whole South, because वहाँ पे infiltration कम हुआ, so the most people in South feel that we're not true Indians. So there's a constant battle between North and South, and this. So when this whole Azadi ka jang happened, it changed a lot in us. How we look at failure. इससे पहले ऐसा नहीं था, fail करना बुरा नहीं माना जाता था. ये जो concept is built into you is कि fail होगा तो punishment मिलेगी. Never do that to your children and never do that to yourself now. Failing only means two things. One is that you're not made for it. Other is maybe try again. कभी आपने सोचा है कि अगर आप टॉप पे जाके बैठ जाएं, आप सब अचीव कर लें आज? कितने साल के आप लोग? 20. 20, 21, 22, 19, 20, 21, ठीक है, 18, 19, 20, 21. Imagine you've topped at 21 in everything. What will you do at 22? Yeah. So it is obviously a constant journey, right? एक बहुत सुंदर बात है कि जो मंजिल है जो आपने चुनी है अपने लिए, आप सबने अपने ड्रीम्स चुन लिए? कुछ तो सोचा होगा अपने लिए, एग्जैक्टली ना सोचा होगा पर लेंथ सोची होगी कि इतना ऊंचा जाना है जीवन में, ये करना है, सोच लिया है? आप ये मेरी बात सुनिए कि बहुत सुंदर एक बात है कि कितना ही सुंदर हो मंजिल का नज़ारा, ठीक है, कितना ही खूबसूरत सुंदर हो मंजिल का नज़ारा, ज़्यादा वक्त सफ़र में बीतता है. आप पहाड़ चढ़ेंगे, आप पहाड़ गिरेंगे, आप फिर चढ़ेंगे, आप छलांग मारना सीखेंगे. सो लेट फेलियर बी एज मच एज पार्ट ऑफ यू एज विनिंग इज. ओके, कैन वी डू दैट? बहुत सुंदर बात है, ठीक है. ये जो ये हम लोगों ने सबने चेकलिस्ट बना रखी है कि स्कूल के बाद ये करना था, कॉलेज में ये करना है, उसके बाद जॉब लग के ये करना है, फिर शादी करनी है, इस उम्र में ये करना है, इस उम्र में इतनी कंट्री, सबकी चेकलिस्ट तैयार है? आज फाड़ देना घर जाके. I'll tell you why, okay? I have never been a checklist person. Obviously, I want to do 10,000 things. होता क्या है ना चेकलिस्ट के चक्कर में, ये दो रास्ते निकले, अपनी चेकलिस्ट में ये वाला है, ठीक है. चेकलिस्ट के चक्कर में, अच्छा तुम्हारे गट को ना सब पता है, मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ. द मोर यू कनेक्टेड इनसाइड यू नो, वो जो एंग्जाइटी और ये सारी बैड फीलिंग्स होती है ना, दो ही चीज़ों की वजह से होती हैं. वन, यू आर नॉट हेल्दी in your body, and second, you are not healthy in your mind. दोनों के solutions ये हैं. Healthy in the mind का मतलब सिर्फ यही होता है, they're both connected. So if you feel very depressed, maybe go try and go to the gym or maybe a workout, maybe run in the morning. Do that for your body. That these are just signals. जो anxiety है वो हमारे gut में पैदा होती है. बहुत biological knowledge दे रही हूँ क्या आज मैं? सीखनी पड़ती है, मुझे बहुत होती थी. Anxiety attacks. I had my first anxiety attack when I was jobless and I was in Chandigarh. Being jobless made me feel that I was not worth of anything. एक बार जब आप पैसा कमाना शुरू कर देते हैं ना, तो आपकी जो वर्थ है ना वो उतनी हो जाती है कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं. अगर आप 20-25 हज़ार महीना कमा रहे हैं तो आपकी 20-25 हज़ार की औकात है. अगर आप 20-25 लाख महीना कमा रहे हैं तो आपकी उतनी औकात है. This made me feel like a loser because I was not making money. I had left my job to pursue poetry because I had a gut feeling that I am going to do this. So I convinced my parents. It took me 2 years of working in an IT company which is called Infosys. I was bad at it. Imagine having those 2 years to myself in doing what my gut told me. I lost my 2 years in convincing my parents, and that's okay because that is the way I wanted to do it. I could have just left and everything would have been still okay. All gratitude, no complaints. I still learnt a lot there. But still, imagine having those 2 years to myself. Imagine coming here 2 years prior. I'm 28. I would have done this at 26. I would have saved 2 more years to do what I really, really love doing and maybe what I'm good at. And then when I left my job and I was struggling with money, I was doing 10,000 odd jobs. One time I was driving back to my home. And I had an anxiety attack on my way. तो मैंने गाड़ी साइड में लगाई. मुझे पता भी नहीं था कि that is how an anxiety attack. और उस दिन particularly कुछ बुरा नहीं हुआ था. Rather it was a good day. मैं perform करके आ रही थी कहीं से. So these are constant build-ups. इससे पहले मुझे panic attack जैसी चीजें कब हुई थी? Not at this level. When I was in college 3rd year.
I come from a very broken, dysfunctional family where my parents were never in love. ब्राउन फैमिलीज में ना माँ बाप का प्रेम देखना भी ताजमहल देखने जैसा ही होता है. आप एक बार एक आधी बार ही देखने को मिलता है, वो भी कोई फंक्शन ओकेजनल, ठीक है. एंड आई हैड सीन सो मच कलेश ग्रोइंग अप ना कि जब भी कोई लड़ाई होती थी ना, आई वुड फील ग्राउल्स इन माई स्टमक एंड आई वुड गो स्ट्रेट टू द वॉशरूम. आपने रियलाइज किया कि जब आपको एंजाइटी होती है, यू फील लाइक रशिंग टू द लू. इट्स नथिंग, योर गट, आपके गट को लगता है कि कुछ गंदा खा लिया है, क्योंकि आपका माइंड सिग्नल्स भेजता है कि कुछ चेक व्हाट्स रॉन्ग. तो आपकी बॉडी का पहला सिग्नल होता है कि जो भी खाया इसको बाहर निकाल देते हैं, ये गंदा होगा. That is your first signal, which is why the moment you feel wrong, your body, your stomach starts growling and you want to go and poop at least. कि let's try this. That is your body's first attempt, either a puke or a poop. It tries to push out क्योंकि उसको यही मालूम है कि इधर कुछ गलत पड़ा है शायद. So when constantly, whenever my father would shout very loud, मेरा pattern था, I would rush to the loo. और मुझे ऐसा लगता था कि जब भी पापा गुस्सा करते हैं मुझे पॉटी खा जाती है. Such a bad thing, you know. मुझे जाके पहले तो डांट खानी है अभी, and you know there's so much to do. डांट खानी है, I have to ask what is happening, or maybe you know go and get scared in the room. I don't know. So friends were always my saviors. Books were always my saviors. तो जब भी सब सो जाते थे ना, तो मुझे लगता था अब मेरा टाइम शुरू हुआ है, and hence my body clock gets very active at night till date. मुझे लगता है सब सो गए, मेरा वक्त शुरू हो गया, अब शांति है because of my home. तो अभी भी I am insomniac क्योंकि मैं सोती नहीं हूँ. So when you called me at 1, I knew it's going to be a 2. I knew it because for me to sleep early and wake up early is the biggest battle. I will learn that too. So failures are my daily battle. मैं हर रोज सोचती हूँ कि मैं आज टाइम से सो जाऊँगी, टाइम से उठ जाऊँगी, and it shall get better. But I fail every day at it. But I don't give myself shit or guilt. I try again every day. तो किसी दिन मैं जल्दी पक्का सोऊंगी और फिर मैं यहाँ 10 बजे वाले सेशन पे भी आऊंगी, ठीक है. सेकेंडली, तो फ्रेंड्स वर माई सेवियर्स. कुछ भी होता था मैं अपने दोस्तों के घर चली जाती थी, उनको शेयर करती थी, नहीं करती थी, वॉज अ सेकेंडरी बैटल. बट when I was in second year and I decided to sort of fall in love and I was sort of figuring out, I decided to fall in love. I just like somebody as hormonal, basic hormonal thing. So my friends, some of my friends decided कि ये अच्छी लड़की नहीं है, we should throw her out of our group. And that group was my life, okay? Those people meant everything to me. जब आप ऐसे बिखरे बिखरे सेटअप से होते हो ना, तो आपको लगता है कि यही लोग फैमिली है. कल को जब हम बड़े होंगे तो हम लोग साथ में एक शहर में रहेंगे, हमारे घर आसपास होंगे, मे बी फिर जब हमारे बच्चे होंगे तो they'll be best friends. You know, you think of all of these things and these are beautiful things to think of. So when they decided to leave me, and it was purely their call, not mine, every trauma that I had been holding up since childhood, it attacked me. तो आपका जो दिल होता है ना, आप समझिए कि एक प्लेट के जैसा होता है, is what I feel, ठीक है. We'll try to end and then take a rapid fire right now with these 3 poetries, ठीक है. One poem about failure, second poem about depression, and third one about this life. Cool? ठीक है? Are we good? Are we on time? हाँ? नहीं हम टाइम पे? Dipanshu, are we already running late? I speak a lot. I happen to speak a lot. That is what I do for a living. 3 कविताएं करेंगी. एक कविता का नाम है आदत. मैंने बहुत सालों से नहीं सुनाई है, but I'll tell you how आदत changed my life. जब मैंने आदत लिखी थी ना, तो मैं इन सभी कॉलेजेस में, जितने दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं, जितने स्लैम पोइट्री कॉम्पिटिशन्स होते थे, मैं पार्टिसिपेट करती थी, and I would always win. And I was a failure. I have failed 7th standard. So every time Jethalal and Tarak Mehta has said to Daya, Satvi fail, it has hit me very badly. Okay. I almost failed. I had 38%. जब मैं कॉन्वेंट स्कूल में थी, वहाँ पे 40 जरूरी होते हैं, सरकार कहती है 33 जरूरी होते हैं, और मेरी मम्मी और सिस्टर की झगड़े हुए थे कि इसको डाल अगली क्लास में, नहीं तो इसका बाप इसको घर बिठा लेगा. तो फिर ये 7वीं फेल ही रह जाएगी. लेटर एटलीस्ट भी 8वीं फेल, you know. So trust me, failure has been a huge part. I failed 7th class, then I did not get into IIT. I was in Kota, so I failed every day, every test, everything possible. Oh my God, never go to Kota. Then I came to college to become a fantastic mechanical engineer. I did not get the branch. I failed again, so I went to Triple E. ठीक है, Triple E I did not understand a thing. मेरी क्लास के बच्चे ट्रिपल ई में इसलिए थे क्योंकि उनको आईटी नहीं मिला था, ठीक है, और सीएससी. I couldn't do that.
I was writing since forever और मुझे बड़ा दिल से लगता था कि एक दिन मुझे किताब लिखनी है. I want to write a novel that everybody should read. और मुझे बहुत मन करता था. Check. Okay. And I would always feel कि मैं वो थी ना, मछली थी ना, और मैं पेड़ लांघने की कोशिश कर रही थी. तो मुझे लगता था मैं फेलियर हूँ, पर मैं तो बंदर थी. मुझे तो पोइट्री करनी थी. And one time my dad believes a lot in astrology and he felt like that शायद इसकी बैटरी खत्म हो गई है. तो मेरे डैड ने एक बार मेरी कुंडली दिखाई किसी को और उसने कहा कि इसको बोलो लॉयर बन जाए, कि या तो जुबान से पैसे कमाएगी या कैची से. तो कितने ऑप्शंस बनते हैं, ठीक है. कैची का ऑप्शन, आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन फैशन डिजाइनिंग बिकॉज आई वाज अ वेरी क्रिएटिव ह्यूमन बीइंग सिंस फॉरएवर. मुझे अच्छा लगता था किसी भी क्रिएटिव चीज में होना. तो मेरे पापा ने कहा नहीं, कैची यानी कि सर्जन. मैंने कहा सर्जन उतनी कैची थोड़ी चलाता है जितना दर्जी चलाता है, क्या बात कर रहे हो. So he decided that I'm going to be a doctor for me. And now today when I see myself speaking and making money out of it, I realize that astrology was slightly true. Only I was not going to be a lawyer. At heart I am a lawyer. This piece is called आदत. And ये वो सब आदतें हैं जो आप छोड़ नहीं पाते और आपको लगता है कि आप एक फेलियर जैसे हैं. I will try और अगर मैं बीच में भूल जाऊँ तो आप लोग तभी वाह करके ताली हो जाएंगे. ठीक है. नई सुबह के ख्वाब मैं चुनकर सोई थी, इस चेहरे के न जाने कितने नकाब मैं चुनकर सोई थी. कितना अद्भुत है ना कि सुबह उठूं तो जो चाहूं बन जाऊं, दिल के हर ख्वाब को पूरा कर जाऊं. मगर हर सुबह मैं वही इंसान बन जाती हूँ, न वक्त पे खाती हूँ न वक्त पे सोती हूँ. बीते हुए कल की गलतियां मैं बार बार दोहराती हूँ, क्योंकि आदत है मुझे आदतों का मोहताज हो जाने की. वेरी इंपॉर्टेंट कॉल. किसका फोन है? बात करो मम्मी से. हेलो प्लीज मेरा फोन पास कर दो प्लीज. कर लो. इंपॉर्टेंट है, मैं भूल गई हूँ क्योंकि. वाह. ठीक है मम्मी. अगर मैं मेरी मम्मी का फोन ना उठाऊं तो 6 कॉल आते हैं नॉन स्टॉप. 6 कॉल कर देती है मेरी मम्मी को लगता है कि मर ही गई है. नई सुबह के ख्वाब मैं चुनकर सोई थी, इस चेहरे के न जाने कितने नकाब मैं चुनकर सोई थी. कितना अद्भुत है ना कि सुबह उठूं तो जो चाहूं बन जाऊं, इस रूह की हर ख्वाहिश को मैं पूरा कर जाऊं. मगर हर सुबह मैं वही इंसान बन जाती हूँ, न वक्त पे उठती हूँ न वक्त पे खाती हूँ. बीते हुए कल की गलतियां फेलियर मैं बार बार दोहराती हूँ और फिर बातें करती हूँ खुद से नई सुबह को सजाने की, क्योंकि आदत है मुझे आदतों का मोहताज हो जाने की. मगर अब से हर सुबह एक नए नकाब की ओर हूँ मैं. उठी तो देखा एक चोर हूँ मैं. सोचती हूँ आज भूख अपनी मेहनत की कमाई से मिटाऊंगी. इस रूह में बद्दुआओं की लगी आग को थोड़ा तो बुझा कर घर आऊंगी. मगर जिस थाली से रोटी मैं बांटने गई थी उसी थाली को मैं लूट कर आ गई. आदतों से मजबूर मैं आज फिर टूट कर आ गई. गलत नहीं मैं, बस चुराने की आदत है मुझे और आदतों का मोहताज हो जाने की आदत है मुझे. ये दूसरा नकाब मुझे एक चौराहे ले आया है. मेरे दामन में इसने एक मूर्ति और चंद सिक्कों को सजाया है. मैं झूठी दया और दुआओं के नाम पे भीख मांगती हूँ. मैं लोगों को उन्हीं के डर की सूली पे डालती हूँ. रोना फितरत है मेरी, वजह नहीं कोई हर बात पे दुखी हो जाने की. बस आदत है मुझे आदतों का मोहताज हो जाने की. ये तीसरा नकाब न जाने मुझे कहाँ ले आया है. एक बंद कमरा और हर कोई बस धुएं में समाया है. अगले ही पल मैं जहर को खुद में बसाने लगी. किसी गंदे पानी के नशे को मैं शरीर में अपने मिलाने लगी. मैं मुश्किलों को अपनी नशे से उड़ाने लगी कि हर रोज आती है फिर वही घड़ी, कभी पानी तो कभी धुएं में मदहोश हो जाने की. क्योंकि आदत है मुझे आदतों का मोहताज हो जाने की. आज सुबह जो उठी तो ये नकाब मेरा था. न पहुंचा था जो किनारे वो हर ख्वाब मेरा था. न सिमटा था जो वो हर काम मेरा था. कभी खुद से मिलती हूँ तो पूछती हूँ क्या होता अगर मैं आदतों की मोहताज ना होती. मेरे दिल में फिर शायद चीखने चिल्लाने की आवाज ना होती. मैं मुश्किलों से लड़ती, मैं रास्ते अपने चलती हूँ. नशे में ना मैं अंधाधुंध बहती जाती. मैं खुद से अपनी मंजिलें न चुराती.
मैं पल पल बीते हुए कल से भीख ना मांगती, खबर होती मुझे हर काम का एक वक्त होता है, इंसान ना सही समय बहुत ही सख्त होता है। मैं अपनी ही गुलाम ना होती, मैं अपनी ही गुलाम ना होती, अगर मैं आदतों की मोहताज ना होती। हिम्मत रखती मैं चलने की आदतों के बावजूद पंख फैलाने की, हिम्मत रखती मैं चलने की आदतों के बावजूद पंख फैलाने की, मगर आदत है मुझे बिस्तर में 2 पल और सो जाने की। काश आदत होती मुझे आदतें छुड़ाने की, मगर आदत है मुझे आदतों का मोहताज हो जाने की। थैंक यू। We were at attachment issues somewhere, है ना? ये तुम्हारा वक्त होगा ना जब तुम्हारे नैन मटके हो रहे होंगे और तुम्हारा कांस्टेंट हार्ट ब्रेक्स हो रहा होगा, टीचर्स के सामने वो मैं बताने में शर्म आएगी, मैं हाथ खड़े नहीं कराऊंगी, बट यू नो, आई नो यू नो, राइट? ओके, कैन यू नेम अ फ्यू रेड फ्लैग्स? तुम्हें तो ये टर्म पता होगी, है ना? कैन यू नेम अ फ्यू रेड फ्लैग्स? मतलब लड़कों लड़कियों के नाम मत लेने लग जाना। कैन यू नेम अ फ्यू रेड फ्लैग क्वालिटीज? Late replies, wow, that's new. Emotionally unavailable. Attitude problem. Huh? Mean. Ignorant. Narcissist. टॉक्सिक। तुमको पता है एक लड़का बेचारा कितनी देर से रेड फ्लैग को बोलने की कोशिश कर रहा है, सारी लड़कियों ने उसको घेर लिया और तुमको पता है मैं जब भी ये सवाल ऐसे पूछती हूँ तो सारी लड़कियां ही आंसर दे रही होती हैं, क्योंकि मुझे लगता है बेचारे लड़कों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि लड़की रेड फ्लैग है, क्या होता है रेड फ्लैग, लड़की है हमसे बात कर रही है, इतना ही काफी है, हम खुश हैं। तो एक बेचारा बोलने से, आप बोलिए सर, आप क्या करें? दूसरों का क्रेडिट खाना। दूसरों का क्रेडिट खाना। सर ये रिलेशनशिप रेड फ्लैग तो हुआ ही नहीं ना, ये तो कोई भी कर सकता है। इन बात के सॉरी बुलवाना। इसने जो लोगों के लड़कों बेचारों के दिल से आह निकली है ना इस बात से। और क्या है बताओ? सिर्फ लड़के बोलेंगे, ठीक है? इनकी कोई नहीं सुन रहा है, रुको तुम सारे, मुझे पता है तुम्हारे वाले सारे। हाँ, सिर्फ अपनी सुनाना। सिर्फ अपनी सुनाना। तुम्हें तो मेरी बातें भी बुरी लग गई होंगी, इतनी देर से तुम सुन रहे हो मेरी। और तुम हमेशा गलत हो, ओके, मिस्टर लेफ्ट मिसेस राइट, ठीक है? व्हाट एल्स? देखा? बिना बात के लड़ना। इतने घटिया रेड फ्लैग में पहली बार सुनी। मैं बोल रही हूँ इनके पास नहीं है, ये बना रहे हैं अभी। और क्या है? हाँ? डेफिनेशन है कि सर ऐसी क्वालिटीज जो आपके पार्टनर में नहीं होनी चाहिए। मेल बेस्ट फ्रेंड। सीक्रेट बताती हूँ, ठीक है? जब लड़कियां अपने क्या बोलते हैं पुराने रिश्ते से त्रास आ जाती है ना, जब एक आधी बार 2 बार दिल टूट जाता है, ठीक है? सारे लड़के सुन लेना, नहीं मन नहीं भरते, मैं बताती हूँ। ये समाज क्या है ना, घर, अच्छा एक बेसिक क्विक रूल, हाँ, गर्ल्स एंड बॉयज एंड गर्ल्स का रिलेशनशिप, ये पीस सुनाने का हमारे पास टाइम है, शो में आना उसके लिए, आई मेक अ स्टूडेंट डिस्काउंट फॉर यू गाइस एंड इफ यू वांट टू कम फॉर फ्री दैट्स ओके, ठीक है? बट ये लड़की का घर है, सारी फिल्में याद कर लो बॉलीवुड की, ये लड़के का घर है, ठीक है? नहीं, ये लड़की का घर है क्योंकि मिसेस राइट है, ठीक है? ये लड़की का घर है और ये लड़के का घर है, सारी बॉलीवुड फिल्में याद कर लो। यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? दुपट्टे उड़ रहे हैं, वो लड़की खुश है बहुत ज्यादा, ठीक है? और क्योंकि उसकी शादी मन से हो रही है, इट्स नॉट अ जबरदस्ती वाली शादी। ये लड़के का घर है, ये भी खुश है कि कल से शादी हो जाएगी, मजे आएंगे, बट इसके 3 दोस्त बहुत दुखी हैं, 3-4 जितने भी, कि लड़का निकल गया हाथ से, ठीक है? इसके 3 लोग इसको कॉन्स्टेंटली बता रहे कि गई तेरी आजादी तो कल से, अब तो तू भाभी से पूछ के निकलेगा घर से, अब तू कहाँ मिलेगा हमें? एंड दे जस्ट वेरी, उनको बहुत बुरा लग रहा है कि हमारा दोस्त, अब हम सब इकट्ठे वेले नहीं होंगे, एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, अब हमें ये टपरियों पे नहीं मिलेगा, यू नो, जस्ट तो वो क्या करेंगे, वो आधी रात को छुट्टी ले उसके लिए दारू लेके आएंगे या ऐसी कोई ना कोई इमेच्योर हरकत करेंगे एक वन लास्ट टाइम, क्योंकि उनको पता नहीं क्यों लग रहा है कि शादी के बाद लड़के इमेच्योर हो ही नहीं सकते। कोई भी कभी भी इमेच्योर हो जाता है। टेक फ्रॉम मी, आई विल टेल यू ऑल द हस्बैंड्स ऑफ माय फ्रेंड्स, ठीक है? सबकी स्टोरीज। ये लड़की है, ये पता है क्यों खुश है? क्योंकि ये बचपन से एक बात सुनती आ रही है कि जो करना अपने, तो इसको लग रहा है कल से आजादी का पास मेरा है कल, क्योंकि अच्छा हम लड़कियां बचपन से ट्रिप पे ही नहीं गई हैं। हनीमून हमारी कभी और पहली ट्रिप होती है, पहली वो ट्रिप जिसके बारे में माँ बाप को
पता है ना? कितनी लड़कियां सिर्फ परमिशन लेके ट्रिप पे जाने के लिए शादी करती हैं, मैं बता रही हूँ तुम्हें, बिकॉज वी आर मोर एक्साइटेड अबाउट द हनीमून दैट द रेस्ट ऑफ द लाइफ विद यू। ठीक है, ऐसा टेल यू, जब बहुत ज्यादा ये बातें सुन रहे हो तो ना कि ये वो, पहले एक माँ बाप घर पे इतना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, फिर एक आधा बॉयफ्रेंड मिल जाता है, पार्टनर मिल जाता है जो बहुत रिस्ट्रिक्ट करता रहता है, या मान लो किसी बात से आपका हार्ट ब्रेक हो गया, जस्ट नहीं, तो लड़कियां पता क्या तय करती हैं कि लूप होल क्या है, कि ऐसा क्या रिश्ता हो जिसके प्रोज तो सेम हो और कॉन्स हो ही ना, तो वो बनाती है मेल, क्योंकि रिश्ता वही सोच नहीं। So basically ये लोग जब मिलते हैं और एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं, शादी होती है, and I'll tell you why this happens to the root level so that you don't fall for these mistakes in movies and don't tell your children that. Think of yourself, जब आप लोग क्लासरूम में बैठे होते हो, जब आपको फ्यूचर के बारे में सोचने को आ जाता है, या अपने सुपर हीरोज या सुपर हीरोइंस के बारे में, या अपने फेवरेट कैरेक्टर्स एंड कार्टून्स के बारे में सोचने को आ जाता है, लड़कियों के सारे फीमेल फेवरेट कैरेक्टर्स या जो सारी मूवीज हैं या जो सारी हमारी कहानी है जो हमने कॉन्स्टेंटली थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म सुनी है, आर अबाउट अ राजकुमार। सिंड्रेला स्टोरीज, फ्रोजन, व्हाटसोएवर, ये जितनी मूवीज हैं, जितने कार्टून्स हैं, जितनी बॉलीवुड फिल्में हैं, कि राज आता है और सिमरन को छुड़ा के ले जाता है। नाउ थिंक ऑफ बॉयज, what are they fans of? Aquaman, Superman and whatever जो मेरे बचपन तक नहीं पहुंचे, but Avengers, Marvel, right? एक आदमी दुनिया बचा रहा है, 2 आदमी दुनिया बचा रहे हैं, 4 आदमी मिलकर दुनिया बचा रहे हैं, थीम वही है, कहीं पे कुछ हो गया, इस बार 5 दुनिया बचा रहे हैं, इस बार तो महासंगम है इन सबका, जरूर देखिए जी टीवी पे 5 हिंदी और इंग्लिश में। So when you sort of, you will go and you will fall in love and you will get married and ये हम सबकी प्लेट में होगा क्या ना, तुम्हें जो कहानियां सुनाई गई होंगी ना वो कभी भी सेम नहीं होगी। तो इसीलिए जो तुम्हारी उम्मीद है और जो तुम्हारी उम्मीदें होंगी ना एक पार्टनर से, वो कंप्लीटली तुम्हारे मन में अलग होगी। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम पूरे भारत में है, बात तो हम करते ही नहीं, हमारे मन में है कि बिना मेरी जुबान तक आए तेरे दिल तक पहुंच जाए, ये मेरी अर्जी है, बाकी मेरी जान तेरी मर्जी है कि बताना क्यों पड़े तुझे, मुझे फूल चाहिए वैलेंटाइन पे, बदतमीज, है ना? लाया नहीं मेरे लिए तू जमीन में कूद के और कूद फाड़ के कोई मोती निकाल के, you know, just the standards are set completely wrong. So everything, as we said in the start, everything that is illogical and that does not have a root cause biological logic too, you rethink it. You go back and you rethink it. It is okay if men don't know what to do for you because उनकी नानी ने उन्हें कहानी सुनाई नहीं है, तुम्हारे वाली तुम्हें ही सुनाई है कि ये पागल बनाया गया है सारा। So you do you and you figure out what you want to do together. These are 3 different journeys. हर इमोशन का बोझ एक रिश्ते पे कभी नहीं रखा जाता, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो यार हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? इसीलिए जब भी कुछ उल्टा पुल्टा होता है, ठीक है, विल डू मुस्कुराहट, ठीक है, इसीलिए जब भी कुछ उल्टा पुल्टा होता है, इट्स बेसिक फिजिक्स। हाँ, मेरी सारी कविताएं इधर उधर से अटपटी जगहों से निकलती है, मुझे ये पता होता है, तुम्हें नहीं पता होता। अगर आज आप फेल हुए हो, किसी ने टॉप किया, राइट? प्रोबेबिलिटी, कोई करेगा, कोई फेल होगा, बेसिक, ठीक है? आपका कुछ गुम हुआ है, किसी को मिला है, ठीक है? आपका दिल टूटा है, किसी ने आप पे चीट किया है, किसी के साथ तो सही किया, तुम पे चीट करने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, तो एक दिल टूटा एक जुड़ा है। When somebody dies, somebody is born. Basic, ये सारे basic logics हैं, ये सब probability based है. As Newton said that every action has a equal and opposite reaction. So while you might not be able to balance your mental health, the universe is in complete balance of itself, right? The moment you do more wrong, a volcano will erupt to balance, an earthquake will happen to balance. You know, it will figure out its own way. नहीं तो ये पूरी एक दिन फटके नहीं बन जाएगी और हम सब मारे जाएंगे. And it's true that one day we all will die and all of this will not matter. Our lives, in the perspective of the universe, are too small. They're only large for us, for our own brain. So, no other's entry. ये तुम कर सकते हो. So every time you feel low, every time you feel sad, know that it's a possibility. It's just another permutation and combination. You can win next day again. You're here. And if you don't, that's okay. काहे की इरशाद, मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो, उस जीत की जरूरत तुमसे ज्यादा किसी को थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है,
किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद, और फिर भी रह जाए अगर दिल में दर्द कहीं, और फिर भी रह जाए अगर दिल में दर्द कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ, और है अगर दिल में खुशी ज्यादा तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ अगर सर पे है छत, बदन पर है कपड़ा और है थाली में खाना, और है अगर जरूरत से ज्यादा तो बांट कर घर जाना। मुस्कुराओ जब बार बार ये सोच कर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोच कर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ जब पूछे कोई कि जिंदगी जीने का है क्या सलीका, मुस्कुराओ ये कहकर कि हमने जिंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ even if you have to walk miles and miles because it's okay if your glass is half empty। वो तुमसे पूछते रहते हैं ना कि तुम ऑप्टिमिस्टिक हो कि पेसिमिस्टिक हो, तुम्हें ग्लास आधा खाली आधा भरा दिखता है। Tell them कि मुस्कुराओ even if you have to walk miles and miles because it's okay if your glass is half empty। You can always fill it with smiles। मुस्कुराओ। Thank you। And to end it all, okay, to end it all I want to tell you that all our mental health problems are nothing but a product of our expectations। क्योंकि हमने दुनिया के लिए, लाइफ के लिए अपने लिए एक चेकलिस्ट बना रखी है, हमने सोच रखा है कि ये ऐसी आइडियल होती है, and the moment it shifts away, that delta, that transition from ideal comes, we start worrying, we start bothering, we start getting anxious, we start getting depressed rather than accepting it। So the first answer to social media or any other anxiety is when you see the rest of the world is doing better than you। I'll give you one short example is जब आपको कोई लगता है कि कोई यहाँ खड़ा है 20 साल की उम्र में, 19 में, 18 में, और आप यहाँ खड़े हैं, आपको बुरा लगता है क्योंकि डेल्टा बहुत ज्यादा है। पता है क्यों? क्योंकि आप ऐसे देख रहे हैं, आपको ऐसे देखना है। I'll tell you why। उसने शुरू कहाँ से किया था? यहाँ से, और वो यहाँ तक पहुँच गया। Maybe they were from a richer background, maybe they were from like I'm envious of this। I read about जावेद अख्तर साहब that he was about 13 or 14 जब वो घर छोड़ के बम्बई चले गए थे। उनकी जेब में 12 या 13 रुपए थे, तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास मरते वक्त जेब में 15 रुपए भी हुए तो मैं जीत गया और बम्बई हार गई। So know your delta, okay? So when you are looking at somebody and seeing कि यार वो तो तुमसे यहाँ, उन्होंने शुरू कहाँ से किया था? ये सोचे ना, क्या पता उन्होंने यहीं से शुरू किया हो और वहाँ तक पहुँचे हो, और आप कहाँ से यहाँ तक आए हैं। So always look at your own journey। So to manage this social media anxiety and when you're looking at people, यार इसके पास तो इतना है, ये तो ऐसे मजे कर रहे हैं, no, just your own journey because your ideal world is tailor-made, is customized, it's supposed to be different for everybody। So is love, so is emotion, everything is supposed to be tailor-made। हम सब ना रेडीमेड कपड़ों की तरह दुकानों पे टंगे जाना चाहते हैं, हमारे लिए हर कुछ हमारे हिसाब से सिला जाना चाहिए। So ये जो टेलर कल्चर जा रहा है ना, उसके साथ साथ हमारी भावनाएं सब रेडीमेड दुकानों पर टंगी हुई है कि ये ऐसी होनी चाहिए, ये वैसी होनी चाहिए। जब जैसे माँ बाप कहते हैं ना कि 10वीं कर लो फिर चिल करना, बोर्ड्स हैं, फिर तुम्हें स्कैम में फंसाते हैं कि 12वीं कर लो कॉलेज में जाके मजे करना। कॉलेज के 2 महीने के अंदर अंदर पहला असाइनमेंट, पहला एग्जाम, पहला इंटरनल आ जाता है। फिर तुम्हें लगता है कि यार सेकंड ईयर में चिल करेंगे, सीनियर्स हो जाएंगे। फिर तुम्हें लगता है फाइनल ईयर में तो कुछ नहीं करना होता, टीचर्स भी कम तंग करते हैं। फिर तुम्हें लगता है जॉब लग जाएगी, अपना पैसा कमाएंगे, ऐशे। फिर जॉब नहीं लगती है, तुम सोचते हो कि IAS वाईएस बन जाते हैं। फिर तुम्हें लगता है एक बार बन गए ना, फिर देखना लाल बत्ती वाली गाड़ी और ऐशे। फिर माँ बाप कहते हैं शादी कर लो, फिर करना ऐशे। फिर माँ बाप कहते हैं काम करो, बच्चा कर दो, हम पाल देंगे, तुम करना ऐशे। फिर तुम्हें लगता है कि इसको स्कूल में डाल दें, ये एक बार स्कूल जाने लगेगा ना, फिर हमारे पास टाइम होगा, फिर करेंगे ऐशे। फिर तुम्हें लगता है कि कॉलेज चले जाएंगे ना जब हमारे बच्चे, फिर हम चिल करेंगे। फिर तुम्हें लगता है इनकी शादी करा देते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पेरेंट्स, फिर करेंगे ऐशे। फिर तुम उसको बोलते हो बच्चा कर दो, हम पाल देंगे, तुम करना ऐशे। So maybe because of the scam that this world is running, and the world has to run a scam, you will also have to run scams tomorrow to sell and to do jobs, but in your heart know that it's a scam,
दुनिया जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए बड़ा कुछ इंसानों को करना पड़ता है. जिन बड़ी बड़ी कंपनियों में तुम नौकरियां करोगे ना, ये सनसिल्क और all of these are scams. Just know that in your heart. क्योंकि ये सारा आइडियल दुनिया कभी होगी ही नहीं. Ideals don't exist. This is not zero. This is 0.00001. There is air on my hand. खाली तो होता ही नहीं है ना हाथ कभी भी. So the ideal world does not exist. It is always the in between. तो जैसा कि मैंने कहा कि मंजिल का, उस आइडियल दुनिया का नज़ारा कितना ही सुंदर क्यों ना हो, ज़्यादा वक्त सफ़र में बीतता है, तो इसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है. क्यों है वो ख्वाबों की दुनिया जिसमें सब कुछ है. ये दुनिया जो आँखों के आगे है, क्या इसमें कम कुछ है. जिसमें जादू ही जादू है, जिसकी रोशनी कर सकती अंधेरे पे काबू है. नगमे हैं, किस्से हैं जो सबको सुनाने हैं, गज़लें हैं, गीत हैं जो ज़िंदगी भर गाने हैं. तुम हो, मैं, तुम्हारे मेरे तराने हैं. माँ है, माँ के कुछ सपने हैं जो से याद दिलाने हैं. गम है, खुशियाँ हैं, मोहब्बत से दोनों जीत जाने हैं. तू है, सफ़र है, मौसम इसके सारे सुहाने हैं. दुनिया है, खूबसूरत है, देखने इसके कई ज़माने हैं. और ज़िंदगी है, और ज़िंदगी है जैसी भी है, और ज़िंदगी है जैसी भी है. इसे ना जीने के ना तुम्हारे सब बहाने हैं, तुम्हारे सब बहाने हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन. Thank you so much, ma'am, for such an enlightening and interactive session. And it is definitely true that this was a very much needed dose of motivation that we all needed amidst our exams in the last year. So let's all give another round of applause. Are you all ready? Yes. Huh? Hi everybody, we were in Hansraj today and let's see how these guys liked it. Thank you. So, I hope you all liked it. So, I am going to give a formal vote of thanks, of course. But apart from all of that, I would like to say, like यहाँ चंद लाइनें लिखी हैं. एक पेन नहीं है. So, I would like to extend my heartfelt gratitude to all those who are present over here. आप पास कर. Then, first and foremost, I would like to express a heartfelt gratitude for our esteemed guest, Miss Tayab. And I would say कि यहाँ तारीफ में कुछ लाइनें लिखी हैं मैम की, बट आप एक्चुअली नायाब हैं. वहाँ बैठकर मुझे समझ आया कि इन लाइनों से कहीं ऊपर है. मतलब I myself I love poetry. I like to write और मैं बॉटनी कर रही हूँ. So आज बहुत चीज़ें मुझे समझ आई और मुझे बहुत अच्छा लगा आपको सुन के. And I know everyone sitting over here आज सबको फील हुआ कि आप खूबसूरत हैं. Thank you so much for being here. And then of course, formal thanks to our esteemed principal, our convener Vikas sir, our president Arvind for their unwavering support. Then to my team ma'am, of course without you it was never possible for handling everything, last minute things. Thank you, core council and my complete team. Then lastly, wonderful audience. Thank you for supporting